بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کام کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اکیلی واپس گھر جانے سے گھبرا گئی کہ رات کی تاریکی میں اکیلے سفر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں وارڈن کے پاس رک گئی تاکہ رات وہیں گزار لوں۔ لیکن آدھی رات کے وقت میری روح فنا ہو گئی جب ایک آدمی میرا نام رقیہ ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو 6 سال کا ہے۔ میرے سسرال میں صرف 2 نندیں اور ایک دیور ہی ہیں جو سب کے سب شادی شدہ اور بچوں والے ہیں اور اپنے اپنے الگ گھروں میں رہتے ہیں۔ میرے دیور کے اپنے بیوی بچے ہیں، تبھی وہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا۔ حالانکہ فیکٹری میں میرے میاں کا بھی حصہ بنتا ہے، لیکن اس فیکٹری پر میرا دیور قبضہ جما کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر پریشانی کا سامنا رہتا تھا۔ میں کوئی نوکری نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میرے میکے والے میری زیادہ مدد کرتے تھے۔ ماں باپ ہوتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا، مگر ماں باپ حیات نہیں تھے اور بھائیوں کے دل سے جیسے بہن کے لیے ساری ہمدردی اور محبت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا پریپ کلاس میں ایک اچھے اسکول میں پڑھتا تھا جو کافی مہنگا تھا، کیونکہ میں اپنے بچے کو اچھی اور معیاری تعلیم دلوانا چاہتی تھی، لیکن وہاں کے اخراجات بھی بہت تھے اور پیٹ پالنا بھی ضروری تھا۔ تبھی بے روزگاری کی وجہ سے میں نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی تاکہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں اور اس کے اسکول کے اخراجات برداشت کر سکوں۔ میں نے اس سلسلے میں اشتہار دیکھنا شروع کر دیے، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی۔ یوں ہی خوار ہوتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ بیٹے کے اسکول کی فیس ادا کرنے کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اور میں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی کہ اب شاید کسی سے ادھار مانگنا پڑے گا، کہ اپنے سگوں کا خون تو جیسے سفید ہو چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں ماں باپ اور شوہر کے بغیر ایک عورت بے سہارا ہو کر رہ جاتی ہے۔ سگے بھائی بہن بھی مشکل وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس دن بھی میں کچھ اسکول سے ناکام ہو کر واپس آ رہی تھی جب دیوار پر لگے ایک اشتہار پر نظر جا ٹھہری۔ وہ کسی پاگل خانے کی طرف سے دیا گیا اشتہار تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو صفائی کے لیے کسی خاتون کی ضرورت ہے۔ نیچے نمبر بھی دیا گیا تھا۔ میں نے نمبر نوٹ کیا اور گھر چلی آئی۔ بیٹا اسکول سے آ گیا تھا۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس نمبر پر فون کیا تو انہوں نے مجھے ہسپتال آ کر بات کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے وہ دن بے چینی میں گزارا کہ کہیں وہ نوکری کسی اور کو نہ مل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک بار پھر سے میں ناکام رہ جاتی۔ دن گزرا، رات ڈھلی اور اگلا دن چڑھ گیا۔ اپنے بیٹے کو تیار کر کے ناشتہ کروا کر میں نے اسکول بھیج دیا اور خود تیار ہو کر پاگل خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ متعلقہ عمارت کے سامنے پہنچ کر میں نے گہرا سانس بھرا۔ پاگل خانہ کافی بڑا تھا اور اندر کا منظر ویسے ہی تھا جیسا کسی پاگل خانے کا ہو سکتا تھا۔ ہسپتال کے احاطے میں کئی پاگل عورتیں جگہ جگہ بیٹھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھیں۔ کچھ نرسز ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ میں ان کو دیکھتی اندر آئی اور ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر اوپری منزل کی جانب بڑھی، جہاں ہسپتال کا سپروائزر تھا جس نے اشتہار دیا تھا۔ ابھی میں راہداری کی طرف مڑی ہی تھی جب کسی نے میرا دوپٹہ کھینچ کر میرے بال زور سے پکڑ لیے۔ خوف اور درد کے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پاگل عورت بے دردی سے میرے بالوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، چھوڑو مجھے، مگر وہ بال چھوڑنے کی بجائے مزید کھینچنے لگی۔ میری چیخیں راہداری میں گونجیں تو میری چیخوں کو سن کر ایک نرس تیزی سے میری مدد کو آئی اور مجھے اس سے آزاد کروا کر معذرت کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ میرے سر میں بالوں کی جڑوں تک درد ہو رہا تھا۔ میں افسوس سے اس عورت کو جاتا دیکھتی رہ گئی جو نہ جانے کس غم میں پاگل ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ میں اپنے بال اور دوپٹہ ٹھیک کرتی سپروائزر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سپروائزر نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے اور پھر مجھے کام پر رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اب میں بھی صاحب روزگار ہو گئی تھی اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑنے تھے۔ میں نے سپروائزر سے اپنی آدھی تنخواہ ایڈوانس میں مانگی تو وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگا کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں مجبور
ना होती तो हरगिज़ भी ना मांगती, मगर मुझे अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस अदा करनी है और घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। आप प्लीज़ मुझे आधी तनख्वाह अभी दे दें, ताकि आज रात हमें भूखा ना सोना पड़े। मैं यकीन दिलाती हूँ कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर बाद 10,000 रुपए मेरी हथेली पर रखे और कहा कि जैसे चाहे काम करो, लेकिन इस अस्पताल की कोई बात इस अस्पताल से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसका लहजा काफ़ी पुरस्कार और अजीब सा था, जिस पे मुझे खौफ महसूस हुआ। लेकिन फिर मैंने हामी भर ली और घर को लौट आई। वापसी पर मैंने अपने बेटे की फीस भी जमा करवा दी थी और घर के लिए कुछ राशन भी खरीद लिया था। मैं अब पुरसुकून हो गई थी कि सबसे बड़ा मसला हल हो गया था। अगले दिन मैं पुरजोश से तैयार होकर अस्पताल चल दी थी। वहां जाकर मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा था, बस अस्पताल की सफाई करनी थी और मेरे अलावा भी बहुत सारी मुलाजमाएं इस काम के लिए मुख्तस थीं। काम भी ज्यादा थकावट वाला नहीं था, जिस पर मैं मुतमईन थी, लेकिन मुझे पागल औरतों की हरकतों से खौफ आता था। उनकी हरकतें, उनकी जिन्नाती हंसी और बेढंगापन मुझे डरा देता था। पहले दिन का वाकया मैं भूली तो नहीं थी, इसलिए मैं पागल औरतों से फासला रखने की भी कोशिश करती थी। वहां उन पागल औरतों का इलाज भी होता था और मैं डॉक्टर के साथ ही होती थी। जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ले जाया जाता तो वो सबसे पहले यही कहती कि वो पागल नहीं है, चीखती चिल्लाती और इलेक्ट्रिक शॉक रूम में जाने से मना करती। लेकिन उनकी हर फरियाद रद्द कर दी जाती और उन्हें उस तकलीफ से गुजारा जाता जिससे वो कई घंटों तक तकलीफ में मुब्तला अपने होश व हवास से बेगाना रहती। मुझे वहां काम करते हुए 1 महीना हो गया था। बाकी सब तो अच्छा था, तनख्वाह भी वक्त पर मिल गई थी, लेकिन एक चीज मुझे बेहद अजीब और पुरअसरार लगी थी, और वो थी वार्डन और वार्डन का कमरा। मैंने यहाँ काम करने के दौरान चंद दिन पहले ही नोट किया था कि वार्डन हर हफ्ते एक रात को एक लड़की को जरूर अपने पास सुलाती थी। कुछ लड़कियां खुद वहां रुकती थीं और कुछ को वो जबरदस्ती अपने कमरे में रुकने पर मजबूर करती थी, और उसका ये रवैया मुझे बेहद अजीब लगता था। हफ्ते को चूंकि मैं लेट घर जाती थी, तभी मैं ये बात जानती थी और अगली सुबह जल्द ही अस्पताल आ जाती थी। यहाँ पर मेरे अलावा भी बहुत सी लड़कियां काम करती थीं, जिनमें कम उम्र लड़कियां भी थीं और मुझसे बड़ी भी। वो वार्डन यही अस्पताल के कमरे में रहती थी, अपने घर नहीं जाती थी। मैं शाम को घर वापस जाती थी, लेकिन मैंने हर हफ्ते एक लड़की को जरूर वार्डन के कमरे में जाते देखा था, और अगली सुबह मैंने उसी लड़की को उस कमरे से बाहर आते भी देखा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता था कि रात को वो लड़की ठीक ठाक उस वार्डन के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो लड़की सुबह के वक्त उस कमरे से बाहर निकलती तो उसके पेट पर लाल रंग का कपड़ा बंधा होता और वो लड़खड़ाती हुई चलती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो, लेकिन सवाल ये बनता था कि वार्डन के कमरे में उसे क्या तकलीफ हो सकती थी। मैंने 3-4 बार ऐसे ही होता देखा, तो अब की बार उस कमरे से निकलने वाली लड़की के चेहरे को गौर से देखा, जो काफी जर्द पड़ा हुआ था। आंखें भी रोने की वजह से सूजी सूजी लग रही थी, जबकि चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे से निशान भी थे। यकीनन वो वार्डन ही उन लड़कियों की तकलीफ की वजह थी, मगर सवाल यह था कि वो वार्डन उनके साथ करती क्या है। मैंने वार्डन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मुझे वो कुछ अजीब सी लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत परस्ती मालूम होती। दिखने में भी वो काफी करख्त लगती थी। बाकी सबके साथ भी उसका रवैया लिया दिया सा ही था, लेकिन ये बात भी मैंने नोट की कि सुपरवाइजर के साथ उसका रवैया काफी दोस्ताना और बेतकल्लुफाना था। वो अक्सर व बेशतर सुपरवाइजर के कैबिन में पाई जाती और काफी देर बाद वहां से निकलती थी। अगले दिन सुबह के वक्त मैं जब पागल खाने में ऊपर वाली मंजिल पर आई तो सामने ही एक लड़की वार्डन के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके पेट पर सुर्ख रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, जबकि उसके चेहरे पर भी बाकी लड़कियों की तरह तकलीफ के आसार और आंखों में नमी थी। मुझे यकीन हो गया था कि जरूर वार्डन लड़कियों को इस्तेमाल करती है या उनसे किसी किस्म की बदतमीजी करती है। वो लड़की लड़खड़ा कर चल रही थी। मैंने तेजी से झाड़ू एक कोने में रखकर उस लड़की का पीछा किया, जो अब अस्पताल से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी।
कुछ ही देर में वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच चुकी थी। शायद उसने वहां से दवाइयां ली थी। मैंने एक बार फिर उसका पीछा करना जारी रखा। वो पैदल ही चलती जा रही थी। 15 मिनट बाद वो एक छोटे से मोहल्ले के एक छोटे से घर में पहुंच गई थी। मैंने अस्पताल का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था, इसलिए मैं तेजी से दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर वो लड़की घबरा गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी के कराहने की आवाज से वो खामोशी टूट रही थी। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे बीमार लग रही हो। तुम्हें देखा तो देखने चली आई। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और अब जाओ यहां से। मैंने कहा कि अंदर कौन है? उसने बताया कि उसका शौहर है जो बीमार है। मैं उसकी बात सुनकर सर हिलाकर वापस आ गई। यकीनन वो वार्डन का जुल्म और सितम इसलिए सह रही थी कि शौहर के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके और वार्डन लाजमी उसको इस्तेमाल करने के बदले पैसे देती होगी। गुर्बत भी इंसान से क्या क्या करवा देती है कि इंसान को हलाल और हराम की तमीज को भुलाना पड़ता है। अभी मैं उसके घर से कुछ ही दूर थी जब मैंने एक बाइक वाले को उसके घर के सामने रुकते हुए देखा। वो उससे एक लिफाफा पकड़ा रहा था और साथ में दवाइयों का शॉपर भी था। यकीनन उसका रिश्तेदार होगा। मैं अपनी ही सोचों के ताने बाने बुनती वापस पागल खाने पहुंच गई थी। वार्डन की कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी थी। हर हफ्ते एक लड़की उसके कमरे से निकलती जिसके पेट पर सुर्ख रंग का कपड़ा बंधा होता और वो लड़खड़ा कर चल रही होती। मेरा ख्याल था कि वो लड़कियां अपनी किसी मजबूरी में ही उस वार्डन के पास आती हैं। जब उनको परवाह नहीं थी तो मैं क्यों परवाह करती? लेकिन ये मेरी गलती थी। मुझे परवाह कर लेनी चाहिए थी क्योंकि मेरी लापरवाही का नतीजा जल्द ही सामने आ गया था। उस दिन मैं मामूल के मुताबिक एक कमरे की सफाई कर रही थी। वहीं एक डॉक्टर एक पागल के चेकअप के बाद कमरे से निकल रही थी जब उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खौफ से लरस गई क्योंकि डॉक्टर भी बाहर जा चुकी थी। उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे जाने दो। ये मुझे बहुत मारते हैं, मुझे दर्द देते हैं, मेरे घर भी नहीं जाने देते। देखो मैं पागल तो नहीं हूं। मैंने पलटकर उसे देखा तो वो रो रही थी। मुझे कट लगाते हैं देखो। इतना कहकर उसने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो वहां पेट पर लंबाई के रुख बड़ा सा कटनुमा निशान था जो अब मुंतमिल हो रहा था। मैं मखमसे का शिकार हो गई और ताज्जुब से उस निशान को देखने लगी, मगर किसी चोट का सोचकर सर झटक गई। वो एक 30 साला औरत थी जो 1 साल पहले यहां आई थी और अब तक जेरे इलाज थी। वो सच में पागल थी। मैं उसकी हरकतें अक्सर देख चुकी थी। मैंने अफसोस से उससे देखा, अपना हाथ छुड़वाया और बाहर निकल गई। पीछे अब वो ऊंची आवाज में रोती जा रही थी। उनको देखकर मेरा दिल दुख से भर सा जाता था क्योंकि उनके घर से कोई भी उनसे मिलने ना आता था। न बाप, न माँ, न भाई, ना शौहर औलाद। आज शाम को एक मुलाजमा छुट्टी लेकर चली गई थी जिसकी वजह से काम काफी बढ़ गया था और मुझे काम करते करते रात हो गई थी। मैंने रात यहीं गुजारने का फैसला किया और अपने देवर को फोन करके अपने बेटे को आज रात अपने घर ले जाने का कह दिया, जिस पर वो हामी भर गया था। मैं अकेली वापस घर जाने से घबरा गई कि रात की तारीकी में अकेले सफर करना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं वार्डन के पास रुक गई ताकि रात वहीं गुजार लूं, क्योंकि कहीं और कोई जगह भी नहीं थी। मुझे कुछ खौफ भी लाग था, लेकिन फिर भी मैं वार्डन के कमरे में आ गई। कमरे के एक तरफ हरे रंग का पर्दा लगा हुआ था जिसके पार क्या था मुझे मालूम नहीं था। एक तरफ 2 सिंगल बेड रखे हुए थे जिसमें से एक पर वार्डन और दूसरे पर मैं नीम दराज हो गई। सोने से पहले वार्डन मुझसे मेरे बारे में सवाल करती रही जिसके मैंने सच सच जवाब दिए। मेरे शौहर की मौत का सुनकर उसने अफसोस का इजहार किया जिस पर मैं चुप रही। कुछ देर बातों के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं उसे शब बखैर कहकर सो गई। रात का ना जाने कौन सा वक्त था जब गहरी नींद में थी, जब अचानक मुझे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो, लेकिन मैं उस सब को अपना ख्वाब समझकर बेदार ना हुई और सोई रही। लेकिन आधी रात के वक्त मेरी रूह फना हो गई जब एक आदमी मेरे सर पर खड़ा होता महसूस हुआ।
नींद में भी मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। मैंने झट से आंखें खोली तो मेरी चीख निकल गई। एक लंबा तड़ंगा आदमी मेरे करीब खड़ा मुझे देख रहा था। मुझे चीखते देखकर उसने तेजी से अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर मेरी आवाज को दबाया। मैं उसे धक्का देकर उठ खड़ी हुई, पीछे को खिसकने लगी। तभी वहां वार्डन आई और कहा कि ये चीख कैसी। उस आदमी ने कहा कि इसे बेहोश करने लगा था कि ये जाग गई। उसकी बात सुनकर मैंने खौफजदा होकर वार्डन को देखा, जो उस आदमी को घूरते हुए कह रही थी कि एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, अब लगाओ इंजेक्शन इसके। वार्डन की बात सुनकर मुझे खतरे की घंटियां बजती महसूस हुईं, जबकि वो आदमी अब सुरिंज भरकर मेरे करीब आ रहा था। मैंने तेजी से टेबल से चाकू उठाकर उसकी तरफ किया और कहा कि अगर मेरे करीब आए तो जान से मार दूंगी। क्यों बेहोश करना चाहती हो मुझे? मैंने पूछा तो वार्डन ने कहका लगाया और बोली कि इस चाकू से तू हमें नहीं मार पाएगी और तुझे बेहोश इसलिए करना है ताकि अपना काम कर सके। मैंने लरसते हुए पूछा कैसा काम? तो वार्डन की बजाय उस आदमी ने कहा कि सुबह उठोगी तो पता चल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी इंजेक्शन लिए मेरी तरफ बढ़ा और मेरी बाजू में चुभोने लगा। जब मैं एकदम झकाई देकर उसकी पुश्त पर आई और तेजी से चाकू उसकी कमर में घोंप दिया, एक दिलदोज चीख उसके हलक से गूंजी थी। वार्डन ने मुझे पकड़ना चाहा तो मैंने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर उस आदमी की पुश्त से एक झटके से चाकू निकालकर वार्डन की गर्दन पर रखा और पूछा कि क्या करती हो तुम इन लड़कियों के साथ और मुझे क्यों बेहोश करना चाह रही थी? मैं उससे सर्द लहजे में पूछ रही थी, जबकि पीछे वो आदमी जमीन पर गिरा तड़प रहा था। वार्डन की नजरें भी उस पर जमी हुई थी। मैंने फिर से कहा कि अगर नहीं बताया तो तुझे भी उसी की तरह इस चाकू से हलाल करूंगी मैं। मेरी बात सुनकर वार्डन ने खौफजदा होकर मुझे देखा और कुछ कहने ही लगी थी जब अचानक दरवाजा धाड़ की आवाज से खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मेरा ध्यान भटका तो उस वार्डन ने मेरे हाथ से चाकू छीनकर मुझे जोर से धक्का दिया तो मैं जमीन पर जा गिरी। मेरी कोहनियां जमीन पर रगड़ खाने से छिल गई थी। मैं दर्द से कराही और गुस्से से वार्डन की जानिब देखा, जो अब चाकू मेरी तरफ किए गुस्से से मुझे देख रही थी। वो लड़की अब हमारे सामने आन खड़ी हुई थी और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले यहाँ नहीं आई थी। वो लड़की गुस्से और नफरत से वार्डन को देख रही थी। मैं तो उस सब से चकरा कर रह गई कि यहाँ हो क्या रहा है। वार्डन ने गुस्से और नफरत से भड़क कर कहा कि बहुत शौक हो रहा था ना जानने का, तो अब तुम्हारे साथ ये भी जान ले कि मैं इन लड़कियों के साथ क्या करती हूँ। मैं यहाँ लड़कियों को लाती हूँ और उनके गुर्दे निकाल लेती हूँ और फिर उन गुर्दों को महंगे दामों बेचकर उससे मुनाफा कमाती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस अस्पताल का सुपरवाइजर और मालिक भी इस फेल में शामिल है। उनके कहने पर ही मैं लड़कियों को यहाँ लाती हूँ। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से अपना गुर्दा बेच देती हैं क्योंकि उन लड़कियों को पैसों की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ लड़कियों को हम ज़बरदस्ती यहाँ तक लाते हैं और रात को बेहोश करके उनका ऑपरेशन करके एक गुर्दा निकाल लेते हैं, जिससे वो जिंदा भी रह जाती हैं और हमारा काम भी हो जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फैल गईं, जबकि मेरे सामने खड़ी लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोली थी, बल्कि खामोशी से गुस्से से वार्डन को देखे जा रही थी। मैंने कपकपाते लहजे में पूछा, क्या वो तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन नहीं करवाती? तो वार्डन कहका लगाकर हंसी और बोली कि हम पक्का काम करते हैं कि किसी को हम पर शक ही ना हो। जिस लड़की को रात को मैं यहाँ रखती हूँ उसे ऐसी दवाई देती हूँ जिसे खाकर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फिर हम उसे चेकअप करके झूठ बोल देते हैं कि उसके गुर्दे में जहर फैल गया है। अगर गुर्दा ना निकाला तो मर जाएगी। यूं वो हमारी बातों में आकर खुद ही ऑपरेशन के लिए राजी हो जाती और यूं हम उसका गुर्दा निकाल कर बेचते हैं। यहाँ पर जितनी भी पागल औरतें हैं उन सब के एक एक गुर्दे को निकाल कर हम बेच चुके हैं। हमारा ये कारोबार बहुत अच्छे से हमें फ़ायदा दे रहा है और आज भी मुझे यही लगा था कि तुम्हें बेहोश करके हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन तुम तो हमारी सोच से भी ज़्यादा होशियार निकली। वार्डन ने एक नज़र मुझे और एक नज़र अपने आदमी को देखकर कहा, जो दर्द के मारे अब बेहोश हो चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक अस्पताल की आड़ में ये घिनौना काम हो रहा है और उसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं। डॉक्टर तो मसीहा होता है,
लेकिन ये लोग ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं, जो चेहरे पर मसीहा का बोर्ड सजाकर हकीकत में कसाई बने हुए थे। न जाने कितनी ही औरतें और लड़कियां उनके धोखे में आकर अपना गुर्दा गंवा बैठी थी। मुझे वो औरत याद आई जिसने मुझे अपने पेट पर कट लगा दिखाया था, लेकिन मैंने उसे संजीदा नहीं लिया था। वार्डन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रही थी, जबकि मैं अपनी सोचों में गुम रोती चली जा रही थी। इससे पहले कि वार्डन मुझे कोई नुकसान पहुंचाती, करीब खड़ी लड़की ने उसका चाकू वाला हाथ पकड़कर उसका बाजू मरोड़ा तो चाकू वार्डन के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। वार्डन की चीख कमरे में गूंजी। उस लड़की ने एक बार फिर वार्डन को बालों से दबोचकर झटका दिया तो वो सामने दीवार से जा टकराई और बेदम होकर जमीन पर गिर गई। अब वो दीवार के साथ लगी बैठी थी, गहरे सांस भर रही थी, जबकि सर दीवार से टकराने से उसका माथा काफी सूज गया था। उस लड़की का रवैया देखकर मैं काफी सहम गई थी, जो दिखने में ही एक लड़ाका लड़की लग रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और 3-4 आदमी हथियार हाथों में थामे अंदर दाखिल हुए। मैं उनको देखकर मजीद डरी थी, मगर अब वो लड़की उनको वार्डन को हथकड़ी लगाने का कह रही थी। यकीनन वो पुलिस के लोग थे जो सिविल कपड़ों में मलबूस थे। एक आदमी ने वार्डन की हथकड़ी लगाई, जबकि दूसरा उस बेहोश पड़े आदमी को घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। वो लड़की मेरे जैसे लिबास में मलबूस थी जो सफाई के दौरान पहना जाता है। उस लड़की ने अपनी कमीज के बटन से एक कैमरा उतार कर अपने साथी के हवाले किया, यानी वो यहाँ हुआ सारा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर चुकी थी। और सब में तो वो मंजर भी था जब मैंने उस आदमी को मारने की कोशिश की थी, जिसका मतलब था कि अब मैं भी जेल जाने वाली थी और मेरी तो जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं था। वो लड़की वार्डन के सामने बैठी, जो ये सारी कार्रवाई देखकर काफी हैरान और खौफजदा सी लग रही थी, क्योंकि उसे मालूम था अगर ये पुलिस के लोग थे तो वो अब जेल में चक्की पीसने वाली थी। वार्डन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। वो लड़की उसकी तरफ देखती उसका सवाल नजरअंदाज करके बोली कि आज से 2 साल पहले मेरी बहन यहाँ नौकरी करने आई थी। मैं उस वक्त ट्रेनिंग पे थी, तभी मुझे इल्म ना हो सका कि वो यहाँ काम कर रही है। तुमने धोखे से उसका गुर्दा निकाला, लेकिन उसके ऑपरेशन के वक्त तुमने इस्तेमाल शुदा आलात इस्तेमाल किए, जिससे इंतकाल खून के जरिए उसे एड्स हो गया। आज के दौर में सब लोग एड्स की एक ही वजह समझते हैं, और वो है किसी का किसी से गैर इखलाकी ताल्लुक होना। मेरी बहन उसके बाद 2 माह जिंदा रही और फिर मर गई, लेकिन ये 2 माह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। उन 2 महीनों में उसने इस नाम निहाद मुआशरे के लोगों से अपने किरदार पर बहुत से ताने सुने। लोग उसे कोसते थे, बद किरदार कहते थे कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। 2 महीनों में लोगों को उसे बातें सुना कर ताने मार मार कर जिंदा लाश बना दिया था, जो ना कुछ महसूस करती थी ना बोलती थी, और लोगों के कोसनों ने उसी खामोशी से उसे मरने पर मजबूर कर दिया। उसके मरने के बाद भी लोगों को चैन न आया तो लोगों ने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर दिया। उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब भी बाहर निकलते अफसोस और हमदर्दी की आड़ में लोग ताने मारते और कहते कि दूसरी बेटी को भी घर बिठा लो, वरना वो भी किसी दिन कोई चांद चढ़ाएगी। लोगों की बातों से तंग आकर मायूस होकर मेरे माँ बाप ने हराम मौत को गले लगा लिया और पीछे मैं तन्हा रह गई। लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मेरी बहन और माँ बाप को मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन असल गुनहगार तो तुम थी। 2 साल लग गए मुझे ये पता करने में कि मेरी बहन के साथ आखिर हुआ क्या था, और 2 साल बाद आज मैं कामयाब हो गई हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के मकसद से आई थी। कल ही मैंने यहाँ पर कैमरे फिक्स किए थे, और कैमरे की मदद से ही मैंने इस लड़की को यहाँ पर मज़ाहमत करते देखा था। तभी मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गई, और अब तुम लोगों को तुम लोगों के किए की सज़ा मिलेगी, और जिस भी लड़की के साथ तुम लोगों ने जुल्म किया है उन्हें इंसाफ मिलेगा। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और अहलकार उस वार्डन को ले गए। मैं डरी हुई थी, तभी उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। तुमने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को ज़ख्मी किया था और वो जिंदा है, तो तुम पर कोई केस नहीं बनेगा, बल्कि तुम इस केस में गवाह के तौर पर अदालत में हाजिर होकर गवाही दोगी। उसकी बात सुनकर मुझे हौसला हुआ और मैंने सर हिला दिया। वो लड़की जा चुकी थी और मैं वहीं आराम की गर्ज से लेट गई
کہ ساری حقیقت جان کر میرے اعصاب تھک سے گئے تھے۔ اگر آج میرا بھی ایک گردہ نکال لیتے اور اس دوران مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے بچے کا کیا ہوتا، یہی سوچ کر میں لرز گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ کیس عدالت میں پیش کیا گیا۔ ثبوتوں اور میری گواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہسپتال کے مالک، سپروائزر، وارڈن اور ان کے سبھی ساتھیوں کو کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی اور وہاں سے ساری پاگل خواتین کو دوسرے پاگل خانے میں شفٹ کر کے وہ پاگل خانہ سیل کر دیا گیا۔ میں خدا کی شکر گزار تھی جس نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی تھی اور اب وہیں جاب کرنے لگی تھی، جس سے میری اور میرے بیٹے کی زندگی سہل ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔